we'll go through the next part of your lesson, that is farming in Palampur. Open to page 2. Now, as I had already told you before, that farming production requires 4 main inputs, that is land, labor, capital which may be fixed or physical. Next, the last requirement for production is knowledge and enterprise. So now we'll go through in details related to these inputs. First is land. Land is a fixed input. So farming is, in Palampur, farming is the main production activity, as 75% of the people who are working are dependent on farming. Means that most of the people living in Palampur are farmers. 75% of the people are farmers, because they know only one work, that is to do farming. Now there may be 2 types of farmers. One, those who are owning their own land, and the other type of farmer is those farmers who are not having their own land. मतलब वो farmers जिनकी खुद की land नहीं है, लेकिन जो दूसरों के land में as a laborer काम करते हैं. Now, the well-being of these people is closely related to the production of the farm. farm से उन लोग जो production करते हैं, जो crops produce करते हैं, उसके ऊपर ही उनकी livelihood, उनकी standard of living based है. But land, basic constant of land in raising farm production. Land area under cultivation is particularly fixed. So since 1960 in Palampur there had been no expansion in land area. So by then some of the wasteland and villages had been converted. Now we'll also find that some of the wasteland of Palampur now is being converted to cultivable land, because land is fixed, it can't be increased. So based upon the demands of crops and upon the prosperity of the farmers of Palampur has to grow more and more crops. So उनके खुद के जो cultivable land है वो कम पड़ते हैं, इसलिए वो जो land जो जिस पे cultivation पहले waste land जिसको हम कहते हैं, जिसमें cultivation पहले होता नहीं था, अब उसको भी धीरे धीरे cultivable land में convert किया जा रहा है. Next, is there a way one can grow more from the same land? कोई way है कि एक ही land में farmer ज़्यादा से ज़्यादा crops produce करे, so that ज़्यादा से ज़्यादा वो crops को market में sell करे और अपनी standard of living को high कर पाए, prosperity मिल पाए? Yes, it can be possible in the kind of crops grown and facilities available. Now किस चीज़ पर basis है कि वो फार्मर कैसा क्रॉप्स ग्रो कर रहा है और कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहा है. तो पालमपुर जो विलेज है उसको एक्चुअली इमेजिनरी विलेज तो कहा गया है, लेकिन एक विलेज है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उस विलेज की भी सेम डेवलपमेंट स्टेट है जिसको हम पालमपुर में देख रहे हैं. सो जितने भी लैंड पाए जाते हैं पालमपुर में, ऑल आर कल्टिवेबल लैंड एंड ऑल द लैंड इज़ बीइंग कल्टिवेटेड. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, कोई भी लैंड को आइडल नहीं छोड़ा जा रहा है. रेनी सीजन में फार्मर्स ज्वार एंड बाजरा ग्रो करते हैं और ये प्लांट्स यूज़ किया जाता है कैटल्स को फीड करने में. कैटल मतलब उसमें सब आ जाता है, काऊ, बफेलो, गोट्स. ओके, नाउ these plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation. और इसके बाद कौन से क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है? Potatoes between October and December. So you can see children, throughout the year the farmers of Palampur are growing different types of crops on their own one particular land. In the winter season fields are sown with wheat, and from the wheat produce farmers keep, और जो wheat produce होती है ज़्यादातर इनफ वीट फार्मर्स अपने फैमिली कंजम्पशन, फैमिली यूज़ के लिए रखते हैं, और जो सरप्लस वीट उन लोग ग्रो करते हैं, जो एक्स्ट्रा वीट ग्रो करते हैं, वो फिर पास के जो ऑलरेडी हमने विलेज मेंशन किया था
रायगंज जो थोड़ी सी डेवलप्ड है उस विलेज के मार्केट में सेल कर देते हैं, सो दैट दे कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम. नाउ अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. देखिए चिल्ड्रन, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल क्रॉप्स लाइक wheat, potato, alright, then jawar, bajra, the farmers are also growing sugarcane also, which is harvested once every year. तो sugarcane आप जानते हो रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाता है एज जैगरी, और उसको गुड़ जिसको कहते हैं, और उसको ट्रेडर्स इन शाहपुर को बेचा जाता है. शुगरकेन से जैगरी बनती है, वो पालमपुर के फार्मर्स शाहपुर के जो ट्रेडर्स हैं उनको वो सेल करते हैं. The main reason why farmers are able to grow 3 different crops, so you can see the farmers of Palampur are growing 3 different crops in one particular year. Why they are able to do so? Because there is well developed system of irrigation facilities. These farmers are not dependent upon rainfall. वो सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं. प्रॉपर सिस्टम ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद है. जैसे मैंने पहले ही कहा था, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्केर्सिटी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स को लोग बहुत यूज़ करते हैं. द मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इरीगेशन. सो पर्शियन व्हील्स वेयर टिल देन यूज बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर्स फ्रॉम द वेल. तो कौन सा सिस्टम ऑफ इरीगेशन थी पालमपुर में? पर्शियन व्हील्स. पीपल सॉ दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरीगेट मच. फिर उनको लगा कि नहीं, पर्शियन व्हील से ज़्यादा बेहतर होगा इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स यूज़ करना. तो फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वो इंस्टॉल किए थे. ऑलराइट, नाउ इंस्टॉल्ड किए थे, गवर्नमेंट इंस्टॉल किया था. फर्स्ट फ्यू ट्यूब वेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड सून हाउएवर द फार्मर्स आल्सो स्टार्टेड setting up their own private tube wells. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple. तो multiple cropping किसे कहते हैं? Multiple cropping मतलब एक से ज़्यादा crops grow करना एक ही सिंगल लैंड में, इसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग. तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अवेल था पालमपुर विलेज में. इट द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. तो ये सबसे कॉमन वे है कि एक ही पीस ऑफ लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स. तो जितने भी फार्मर्स हैं पालमपुर एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं. उसके साथ साथ वो पोटैटो भी ग्रो करते हैं एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स में हम देख रहे हैं. ओके चिल्ड्रन.